All of you. This is the chapter revenue in microeconomics of class 11. Now, what actually is revenue? Revenue means when the producer produces a commodity, he incurs a certain cost of production, which we have done in the chapter of cost. Now, when he sells the commodity, he gets back the money. The money which he gets back is the revenue. So in this chart, what do you see? It is a whole revenue, is a whole teamwork. Marketing is involved. What is the goal? Investment, growth, all these revenues. It is the revenue which gives rise to all these things: teamwork, management, innovation, strategy making. Strategy revenue से ही आती है, growth, investment, goal, etc. So we define revenue as the money earned by a firm by selling its product. There are different components of revenue. The first is total revenue. It is the money earned by selling all the units of a commodity produced. So if the price of the commodity is P and the quantity is Q, the total revenue TR, the total revenue is given as TR, which is P into Q. Now, as we know, price and average revenue are the same. Price is, if you look at it, a seller sells the commodity, the buyer buys the same commodity. The seller sells the commodity at his average revenue. The buyer buys that commodity at the price. And since the commodity is the same, price and average revenue are the same. Total revenue is the marginal revenue, summation of marginal revenue. Then let us go in detail. We study about average revenue. Average revenue is the revenue per unit of output. एक यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जब हम सेल करते हैं प्रोडक्शन के बाद, तो उसमें हमें क्या रिटर्न मिलता है? इट इज द एवरेज रेवेन्यू. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू विद द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. तो टीआर अगर हमारा टोटल रेवेन्यू है और क्यू हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है, टीआर अपॉन क्यू इज नथिंग बट द एवरेज रेवेन्यू. नेक्स्ट वी स्टार्ट अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू. क्या होता है? ये सारे कंपोनेंट्स हैं, आपने पढ़ा हुआ पहले चैप्टर्स में भी, कॉस्ट में भी पढ़ा है, प्रोडक्शन में भी पढ़ा है, एवरेज एपी, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, same thing in the revenue also. Marginal revenue is the addition to the total revenue when the firm sells one more unit of output. मतलब अगर वो n यूनिट सेल कर रहा है, तो जब उसने n-1 यूनिट सेल की, तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या था? दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू. नेक्स्ट वी टेक द डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स. एक हमारे पास परफेक्ट मार्केट होता है, एक हमारे पास इम्परफेक्ट मार्केट होता है. परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. सो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. The firm can sell any output at the market at the fixed rate. तो प्राइस उसमें फिक्स्ड हो जाती है. अब क्योंकि प्राइस आपकी फिक्स होती है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल एंड दे रिमेन कांस्टेंट. इस मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आता है, जो सेम होते हैं एंड हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस of the commodity. इसका graphical representation देखो. If on x-axis we take the quantity and revenue on y-axis, right? Revenue on y-axis, AR is equal to MR. This is a curve parallel to the x-axis. This is the relationship between AR and MR under perfect competition. अब आ जाओ आप TR और MR. When price remains constant, the firm can sell any output at the market fixed rate. Now, marginal revenue is constant, parallel to the x-axis. As MR is constant, TR increases at a constant rate. So, the total revenue curve will be at an angle of 45 degrees from the origin. Graphically देखिए आप, ये आपका क्वांटिटी है, ये आपका रेवेन्यू है. तो जो टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री होता है. ये 45 डिग्री एंगल पे होता है, और ये आपका AR इज इक्वल टू MR कर्व है. नेक्स्ट हम केस लेकर के चलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में. शेड्यूल लेकर के. शेड्यूल क्या है? शेड्यूल है द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. अगर हमारी यूनिट्स हैं 1, 2, 3, 4 यूनिट्स,
जो है हम सेल कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹5, तो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा 5, 10, 15 एंड 20। और मार्जिनल रेवेन्यू जब हम निकालेंगे, बिकॉज AR इज कांस्टेंट, सो MR इज आल्सो कांस्टेंट एज 5। अब हम बात करते हैं जब हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि जब प्राइस आपकी कम होती जाती है। अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म, these are the components of imperfect market which I will explain in the chapter of market in detail. If you want to sell more, अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आप क्या करोगे, आप कमोडिटी की प्राइस कम कर दोगे। So revenue from every additional unit will be less than the average revenue. Marginal revenue क्या है, एक यूनिट का डिफरेंस होता है। तो हर लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। बोथ AR एंड MR फॉल एज आउटपुट इंक्रीजेस। हमें क्योंकि हमें AR फॉल हो रहा है, हम ज्यादा सेल कर सकते हैं प्राइस कम करने पे, इसलिए AR फॉल करता है, MR भी फॉल करता है, बट MR फॉल्स फास्टर देन AR। So MR curve is always below the AR curve. शेड्यूल देखो, ये हमारी 1 2 3 4 5 है, ये हमारा दिया हुआ है, हम यूनिट्स जो बेच रहे हैं, एक सेलर इम्परफेक्ट मार्केट पे बेच रहे हैं, ये उसकी प्राइस है 5 4 3 2 1। नाउ यू नो TQ, क्वांटिटी इनटू AR इज योर TR। तो ये जो TR हमने कैलकुलेट किया है, ये कैसे किया, AR इनटू यूनिट्स सोल्ड, तो 5 8 9 8 एंड 5, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है, विच इज 5 3 1 -1 एंड -3। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, टेकिंग आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस एंड रेवेन्यू ऑन वाई एक्सिस, ये जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो AR है, और ये है आपका MR। MR इज ऑलवेज लेस देन AR। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। व्हेन प्राइस फॉल्स and output increases. MR is positive, TR increases. When MR is 0, TR is maximum. When MR is negative, TR falls. ये एक, इसको हम कहते हैं जनरल रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR। टोटल रेवेन्यू आपका जैसे जैसे आपकी TP की शेप है वैसे ही आपकी टोटल रेवेन्यू की शेप होती है। ये पोजीशन है मैक्सिमम, जब आपका TP मैक्सिमम होता है तो आपका TR मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर ये आपका आ जाता है एवरेज रेवेन्यू, और ये आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसमें आप देखो, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी 0 एंड नेगेटिव, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है। एवरेज रेवेन्यू इज द एक्चुअल price of the commodity, so it can never be 0 or never be negative.